Dear students, today I will discuss regarding the dispersal of plant pathogens or dissemination of plant pathogens. This is an important step of uh, pathogenesis or disease development where the propagules or the pathogens they need to reach to the host surface where they cause the infection. If we can define it in the simple term that we can say that the movement of or transport of the spores or infectious bodies or different forms of the propagules of plant pathogens from infected host to healthy host, or from one plant to another plant, or from the source of survival to the new crop or new host by different means, either automatically or with the help of agencies, and at various distances. And that is known as the dissemination or dispersal or transmission of plant pathogens. And sometimes automatically or autonomously, the pathogens or the spores of the pathogens, especially spores of the fungal pathogens, they exit forcibly from their sporophores, and therefore they also cover a short distance, uh, and that result also a kind of dissemination. There are also the seeds of some parasitic plants which are also expelled forcibly to several distance of several meters, and there are certain agencies also which are associated in the dispersal or dissemination of plant pathogens. So all these about we will discuss in this lecture. Then uh, apart of fungal pathogens, if you talk about the bacterial pathogens, so in case of bacterial pathogens, the bacterial cells they come out from the uh, infected host on the host surface uh, through natural opening or through disintegrated tissues in the form of ooze, and thereafter that the bacterial ooze is disseminated by different means, by abiotic agencies or biotic agencies, and sometimes uh, uh, these agencies they carry the uh, inoculum, bacterial inoculum from the source of infection, and they disseminate to the new host. दूसरे then we can also say that uh, there are different means, there are different agencies by which dissemination of pathogens take place, like machines or clothing or packing material, water, and there are so many uh, methods or interculture operations uh, under which the dissemination of these plant pathogens occur. अब अगर हम ये देखें कि जो dissemination है और इसमें what are the methods of dissemination? Simple, in simple term, we can say the direct methods or indirect methods. In direct methods, which is also known as
autonomous dissemination or autonomous dispersal, or indirect methods where this different agencies are involved, जिसमें बायोटिक एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं और बायोटिक एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और तो इनडायरेक्ट वे में भी और डायरेक्ट वे में भी इनका डिसेमिनेशन होता है। और ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स मींस कि वो जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो किस तरह से उनका एसोसिएशन है, जिसके माध्यम से वो डिसेमिनेट होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द एडहेरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें जो पैथोजेंस के प्रोपेग्यूल्स हैं वो सीड सरफेस पे या प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं और सीड्स के साथ एक्सटर्नली एसोसिएटेड होते हैं, और इसके सीड्स के मूवमेंट के साथ उनका भी मूवमेंट होता है। इसमें बहुत सारे स्मर्ट स्पोर्स हैं, जैसे कर्नाल बंटा ऑफ व्हीट का उदाहरण ले लें, या सॉर्गम स्मर्ट्स का उदाहरण ले लें, या बहुत सारे ऐसे भी डिजीजेज हैं जिनमें दूसरे तरह के प्रोपेग्यूल्स बनते हैं, जैसे स्क्लेरोसिया बनता है राजेक्टोनिया में, या फिर स्क्लेरोसिया में स्क्लेरोसियम राउटसाई में भी स्क्लेरोसिया बनते हैं। तो स्पोर्स हैं जैसे अलग अलग प्रकार के, जो कि सीड्स के साथ, प्रोपेगेटिंग मटेरियल के साथ, ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, इनके साथ इनका एसोसिएशन होता है। और जैसे जैसे इनका प्रोपेगेटिंग मटेरियल सीड्स का मूवमेंट होता है, उसी तरह से वो इनका भी मूवमेंट सीड्स के साथ होता है। देन जर्मिनेटिव ट्रांसमिशन, जिसमें जो प्रोपेग्यूल्स हैं दे एसोसिएटेड इंटरनली विद द प्लांट प्रोपेगेटिंग पार्ट, या फिर प्लांट प्रोपेगेटिंग पार्ट्स में या सीड्स में जब इनका इंटरनली एसोसिएशन होता है तो उस केस को हम जर्मिनेटिव ट्रांसमिशन कहते हैं। उसमें as soon as that the propagating material or seeds they starts germinating, the propagules of the pathogen which are present inside the seeds or propagating planting material, they also become active and start germinating. So that is known as germinative transmission. और इसका एक उदाहरण है लूज स्मट ऑफ व्हीट, जिसमें जो डोरमेंट माइसीलियम के फॉर्म में जो फंगल पैथोजन एस्टिलाइगोट्रोसाई वो रहता है और इंटरनली, और इसी तरह से बीन मोज़ेक में जो पॉलन ग्रेन्स के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स और उसके बाद सीड्स के माध्यम से जो बीन मोज़ेक वायरस है वो ट्रांसमिट होता है। प्रोपेगेटिंग में मोज़ेक पोटैटो मोज़ेक डिजीज का जो वायरस है वो पोटैटो ट्यूबर्स के माध्यम से, और उसका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह होता है व्हाइल टेकिंग दिस। और वेजिटेटिव ट्रांसमिशन, जिसमें कि मोस्टली सभी प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग प्लांट पार्ट्स आते हैं, जिसमें which act as a carrier for a number of fungal, bacterial, viruses और phytoplasma like diseases। ये सभी प्रकार के जो प्लांट पैथोजेंस हैं, इनका जो प्रोपोगेशन है या ट्रांसमिशन है, वेजिटेटिव ट्रांसमिशन इनका ट्यूबर्स के माध्यम से, कटिंग्स के माध्यम से, रनर्स या ग्राफ्टिंग के माध्यम से इनका होता है। और इसमें रिंग रॉट पोटैटो का एग्जांपल दे सकते हैं। रेलास्टोनिया जो ब्राउन रॉट डिजीज का करता है पोटैटो ट्यूबर्स में, उसका उदाहरण दे सकते हैं। और इसी तरह से पोटैटो ट्यूबर्स में पोटैटो वायरस का एग्जांपल दे सकते हैं।
फिर जैसा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्पर्सल की हम बात कर रहे थे, ऑटोनॉमस जिसको हम डायरेक्ट डिस्पर्सल बोलते हैं, या इनडायरेक्ट जिसको पैसिव डिस्पर्सल बोलते हैं। ऑटोनॉमस डिस्पर्सल जैसा कि इसमें itself it is clear that this is also known as direct dispersal, और जिसमें कि जो फंगल पैथोजेंस हैं या बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं या वायरसेस हैं, इनका जो डिसेमिनेशन है या इनका जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फ्रॉम वन होस्ट टू होस्ट प्लांट टू फ्रॉम डिजीज होस्ट प्लांट टू हेल्दी होस्ट प्लांट, या फिर फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ सर्वाइवल टू द न्यू होस्ट, इसमें इनका जो मूवमेंट है वो सीड्स के साथ, प्लांटिंग मटेरियल के साथ मूवमेंट अपने आप होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल एग्रोनॉमिकल ऑपरेशंस। तो इस तरह के जो मूवमेंट है वो तो या तो सॉइल के माध्यम से इनका मूवमेंट होता है, या फिर सीड्स या प्रोपोगेटिंग प्लांटिंग मटेरियल है उनके माध्यम से ये ऑटोनोमसली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसमें सॉइल जो है वो ये एक ऑटोनॉमस डिस्पर्सल का सॉइल एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसमें सॉइल के माध्यम से ऐसे सभी प्लांट पैथोजेंस जो सॉइल में सरवाइव करते हैं, फील्ड्स में सरवाइव करते हैं, मेनली जो सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस हैं और जो सॉइल डिजीज काज करते हैं, तो ऐसे सभी पैथोजेंस फील्ड में, विद इन अ फील्ड या बिटवीन द फील्ड, या फिर जहां हम नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी में सॉइल के माध्यम से वो नर्सरी से फील्ड तक उनका जो मूवमेंट है वो सॉइल के माध्यम से ही होता है। इस जो मूवमेंट ऑफ सॉइल है वो उसका मूवमेंट जितना डिस्टेंस और जिस तरह से मूवमेंट ऑफ सॉइल होगा उसी तरह से जितने भी प्लांट पैथोजेंस हैं उनका मूवमेंट होता है। तो इसमें जो सॉइल का में जो मूवमेंट है उसमें बेसिकली 3 तरह से सॉइल में इनका पैथोजेंस का मूवमेंट होता है। पहला तो कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, जिसमें जो सॉइल है वो इन्फेस्टेड एरिया की सॉइल जब न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस की जाती है और उसमें प्लांट डेब्रीज में जो प्लांट पैथोजेंस के प्रोपेगुल्स रहते हैं वो उनका मूवमेंट होता है उस सॉइल के माध्यम से न्यू एरिया में जो हम सॉइल लेके जा रहे हैं, या फिर जो सीड्स या जो हम उसमें प्लांटिंग मटेरियल्स के साथ वो जो सॉइल है वो जाती है, उसके साथ इसका मूवमेंट होता है। दूसरा जो सॉइल में डिस्पर्सल है वो ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द प्लांट पैथोजेंस इन द सॉइल। इसमें जो मूवमेंट है वो लार्जर डिस्टेंस में नहीं होता, शॉर्टर डिस्टेंस में मूवमेंट होता है, और उसमें ये डिपेंड करता है कि पैथोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह का है, उसके बेस पे इसका जो ग्रोथ और स्प्रेड है वो पैथोजन का सॉइल में होता है। और इसमें स्पोर का जर्मिनेशन है, इसका ग्रोथ रेट है, ये सब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी जो सेप्रोफिटिक सर्वाइवल एबिलिटी है वो किस तरह की है। और अगर उसका सर्वाइवल प्रॉपर होगा तो उसमें सेप्रोफिटिक सर्वाइवल के माध्यम से भी उसके स्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद जो माइसिलियम सॉइल में डेवलप होता है, इस तरह से ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरे जगह तक उसका मूवमेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूजेरियम which is a causal agent of wilt, so it colonizes the dead organic matter or dead plants
and survive saprophytically. So during that process, it moves, the mycelium moves from, while growing and by colonizing the tissues, it moves from one place to another place. तो इस तरह से ये ऐसे बहुत सारे हैं जिनका हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं. देन द परसिस्टेंस ऑफ द प्लांट पैथोजेंस, इसमें जो दूसरा है कि जितने भी सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस हैं, इनके डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे वूस्पोर्स ओमाइसीड्स में बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं फ्यूजेरियम में, स्क्लेरोसिया बनते हैं, स्मट स्पोर्स बनते हैं स्मट फंजाई में, स्क्लेरोसिया बनते हैं राजिक्टोनिया स्क्लेरोसियम में या स्क्लेरोटीनिया में या फिर अर्गट्स में, कई सारे ऐसे हैं. तो ये जो सॉइल में जब ये इनके जो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें ये स्पोर्स बनते हैं और फिर सॉइल में जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशंस होते हैं, उनके माध्यम से ये जो जितने भी डॉर्मेंट स्ट्रक्चर हैं, इनका अपने आप मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देन डिस्पर्सल बाय द सॉइल, और चाहे वो वीडिंग हो, चाहे वो कल्चरल ऑपरेशंस हो डिफरेंट फॉर्म्स के, जब हम किसी फील्ड में हम इस तरह के कल्चरल ऑपरेशंस करते हैं, तो ये जो सॉइल है, सॉइल का मूवमेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के द्वारा, इरिगेशंस के द्वारा, जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी फीट के द्वारा, जो सॉइल है उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है, एक फील्ड से दूसरी जगह फील्ड होता है. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसमें अगर प्रोपेग्यूल्स फंजाई के या दूसरे प्लांट पैथोजेंस के मौजूद हैं, तो उनका भी स्प्रेड उस सॉइल के साथ ऑटोमेटिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चला जाता है. इसका खासकर उस स्थिति में, जैसे हम एग्जाम्पल में लें कि जब हम पपाया सीडलिंग को ट्रांसफर करते हैं नर्सरी से फील्ड में, नर्सरी में अगर इसका स्टेमराट या फुटराटा पपाया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पिथियम एफिनिडेरेटम, अगर इसका ऑलरेडी नर्सरी में ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, सीडलिंग्स नर्सरी में ऑलरेडी इन्फेक्शन है सॉइल में, और उस सॉइल जब सीडलिंग के साथ फील्ड में जाती है, तो जो पैथोजन है उसका डिस्पर्सल नर्सरी से फील्ड में जाता है. इस तरह के और भी कई सारे पैथोजेंस हैं, चाहे वो सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस, चाहे वो इवन नेमाटोड्स हो या बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस हो, जो सॉइल के साथ associated with the soil along with the roots of seedlings, और उनका ट्रांसमिशन होता है. तो इस तरह से ये जो डिस्पर्सल है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक डिस्पर्सल होता है. शॉर्ट डिस्टेंस में एक फील्ड से दूसरे फील्ड में भी हो जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाता है. सपोज अगर कुछ सीडलिंग्स या कुछ न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट्स जब हम लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो along with the soil we also carry the propagules of plant pathogens. इस तरह से हम करते हैं. देन सॉइल के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑटोनॉमस डिस्पर्सल का, वो सीड है, सीड एंड सीड मटेरियल्स, और जिसमें तीन तरह से सीड्स के साथ पैथोजेंस के प्रोपेग्यूल्स का एसोसिएशन होता है. या तो वो सीड्स के साथ मिक्स रहते हैं, एंड दैट इज नोन एज कंटामिनेशन ऑफ द सीड एक्सटर्नली, और दूसरा एक्सटर्नली सीड बॉर्न, एंड तीसरा इंटरनली सीड बॉर्न. सो कंटामिनेशन में जो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दे मिक्स विद द सीड, एंड along with the movement of the seed from one place to another place, those propagules of plant pathogens which are associated with the seeds, they automatically they move from one place to another place. इसका एग्जाम्पल में अर्गट ऑफ बाजरा, जिसके स्क्लेरोसिया
बाजरा के सीड के साथ इनका मूवमेंट होता है। स्मट्स सुराई जो कि सीड्स के साथ, सॉर्गम के सीड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह अपने आप हो जाता है। या फिर फेनोरेमिक प्लांट पैरासाइट का स्कूटा है, उसका सीड जो है वो क्रॉप्स के सीड के साथ मिक्स होके और उसका डिस्पर्सल या डिसेमिनेशन होता है एज ए सीड कंटामिनेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और इसी तरह से कुछ बैक्टीरियल सेल्स और स्पोर्स हैं जो कि सीड कोट में रहते हैं और उनका एंड दे आर आल्सो नोन एज एक्सटर्नली एसोसिएटेड। और जब वो सीड्स को हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जितने भी स्पोर्स हैं फंजाई के या बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल राइस में बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जिसका जो बैक्टीरियम है जेंथोमोनास, ये सीड्स के साथ एक्सटर्नली एसोसिएटेड रहता है। और when such seeds are being carried from one place to another place and for the seed purpose, तो वो एक जिले से दूसरे जिले में भी जाते हैं, कभी-कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आते हैं। तो इस तरह से वो जो बैक्टीरियल ब्लाइट है का जो है वो पैथोजन वो ऑटोमेटिकली उसका डिस्पर्सल होता है। और इंटरनली जितने भी सीड्स के साथ खासकर व्हीट में देखा गया है कि लूज स्मट ऑफ व्हीट में, जिसमें कि जो डोरमेंट माइसीलियम है वो इंटरनली इट इज एसोसिएटेड विद द सीड, और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द व्हीट सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द डिस्पर्सल ऑफ this smut, loose smut of wheat pathogens take place. तो कई तरह के हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कंटामिनेशन में, जैसे हमने बताया कि आप स्मट्स का, अर्गट का, कई तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक्सटर्नली सीड बर्न में जितने भी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन है जिसका सीड के साथ एसोसिएशन होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस का दे सकते हैं, फिर कर्नाल बर्न का ही है, तो ऐसे कई सारे जो है जिसको हम इसमें दे सकते हैं। और इंटरनली सीड बर्न में, एक्सटर्नली सीड बर्न में हम उसको राइस का भी, एक्सटर्नली सीड बर्न में ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का भी एग्जांपल दे सकते हैं। देन कम टू द पैसिव डिस्पर्सल, जिसको हम इनडायरेक्ट डिसेमिनेशन या इनडायरेक्ट डिस्पर्सल भी बोलते हैं। और पैसिव डिस्पर्सल का मतलब ही है कि व्हेन some biotic or abiotic agencies are involved during the dissemination or dispersal of propagules of plant pathogens or the infectious bodies of the plant pathogens from one place to another place, or from the source of survival to the new place or new host. It is known as passive dispersal. So there are inanimate and animate agencies or agents which help in the dissemination of these plant pathogens. Animate में कई सारे हैं, and insects हैं, mites हैं, कुछ फंजाई भी हैं जो डिसेमिनेट करते हैं, जो वेक्टर का काम करते हैं, नेमेटोड्स हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, and human being is the मेन एजेंसी, बायोटिक एजेंसी, जिसके माध्यम से जो प्लांट डिजीजेस हैं या जो प्रोपिक्यूल्स हैं प्लांट पैथोजेंस के, वो एक जगह से दूसरे जगह इनके द्वारा डेसिमिनेट किए जाते हैं या डिस्पर्स किए जाते हैं। फार्म्स एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट पैरासाइट्स हैं, और इनएनिमेट्स में मेनली विंड के, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो डिस्पर्सल है वो होता है। तो अगर हम एनिमेट एजेंट्स में बात करें तो इंसेक्ट्स जो है वो, इनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है।
और जो ये इन्फेक्शन काज करते हैं। इंसेक्ट्स प्लांट पैथोजेंस को या तो प्लांट पैथोजेंस के प्रोपेग्यूल्स इंसेक्ट्स के साथ एक्सटर्नली एसोसिएटेड होते हैं या इंटरनली एसोसिएटेड होते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंगल पैथोजेंस हैं जिनके कोनिडिया, ओडिया या स्पर्मेसिया जब इनके फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं तो ये जब ये रिलीज होते हैं तो इनके साथ कुछ सूरी सब्सटेंस या कुछ सिक्रीशंस या हनी सिक्रीशंस साथ में इनके एसोसिएटेड रहता है, which attracts the insects, and the insects they come for feeding of that honey substance, and along with during the feeding they carry the propagules of plant pathogens, वो कोनिडिया को या स्पोर्स को कैरी करते हैं और फिर जब दूसरे जगह जब ये किस दूसरे होस्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे ये उसको डिस्पर्सल का काम करते हैं। और इसमें जो अर्गट ऑफ बाजरा है और इसी तरह से स्क्लेरोटिनिया ब्राउन राट है जिसमें कि हनी ड्यू स्टेज पाई जाती है और वो इंसेक्ट्स के द्वारा वो हनी ड्यू स्टेज में जो कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं वो इनके द्वारा इंसेक्ट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उनका डेसिमिनेशन होता है। इसमें ऐसे कई सारे पॉलिनेटिंग बीज हैं या इंसेक्ट फ्लाइज हैं जो कि इस तरह के नेक्टर सब्सटेंस से अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो प्लांट पैथोजेंस के प्रोपेग्यूल को डेसिमिनेट करते हैं। इसमें एग्जांपल में फायर ब्लाइट, अर्बेनिया मैलेवोरा का एग्जांपल ले सकते हैं, सिट्रस कैंकर का ले सकते हैं। सिट्रस कैंकर में जो लीफ माइनर है या बीज हैं या एंड्स हैं वो बैक्टीरियम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। और अर्बेनिया मैलेवोरा जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पियर्स में है इसका भी डेसिमिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। देन अनदर डिजीज इज ब्लैक लेगा पोटैटो जो अर्बेनिया कैटोफोरा के द्वारा होती है, ये मैगेट्स के द्वारा डेसिमिनेट की जाती है। विल्ट ऑफ कॉर्न और गमोसिस ऑफ शुगर केन या और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनका ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। और इंडिजिनस ट्रांसमिशन इसमें जो इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इस तरह से हम इनका जो रिलेशनशिप है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है इंसेक्ट्स का पैथोजेंस के साथ और जिसके माध्यम से ये कई सारे प्लांट पैथोजेंस को डेसिमिनेट करते हैं। फिर इसके बाद एफिड्स और लीफ हॉपर्स हैं, ये कई तरह के ये सकिंग पेस्ट होते हैं जो कि वायरसेस के लिए, प्लांट वायरसेस के लिए वेक्टर्स का काम करते हैं और कई सारे ऐसे वायरसेस हैं जो इनके द्वारा जिनका ट्रांसमिशन होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे बग्स हैं, स्केल इंसेक्ट्स हैं जो कि वायरसेस, वाइट फ्लाइज हैं जो कि वायरसेस को या वायरसेस डिजीज के स्प्रेड में इनकी काफी बड़ी भूमिका होती है। ये जितने भी प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट हैं, while sucking up the sap of plants, they carry the virus particle, and while sucking in the healthy plants, they disseminate the virus particles in the healthy plants. तो इस तरह से ये कई सारे ग्रुप्स हैं। इवन कुछ जो च्यूइंग इंसेक्ट्स हैं जैसे ग्रास हॉपर है या कुछ लेपिडोप्टेरस हैं, ये भी थ्रिप्स हैं जो सकिंग वाले हैं, ये सभी इंसेक्ट वेक्टर का काम करते हैं और ये वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं। अब अगर इसमें अलग अलग
देखा जाए तो एफिड्स प्रमुख रूप से हैं जो इंसेक्ट वेक्टर्स के रूप में काम करते हैं और प्लांट वायरसेस का ट्रांसमिशन करते हैं। So aphids are most important insect vectors of plant viruses, and they transmit the great majority of plant viruses which are stylet borne. तो इस तरह से ये जो कई एफिड्स की स्पीसीज हैं जो कि कई सारे वायरसेस को डेसिमिनेट करती हैं, और इसमें जो वेक्टर वायरस का जो रिलेशनशिप है उसमें भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फीडिंग है इनका एफिड्स की जो फीडिंग पीरियड है वो किस तरह का है, और जनरली जो फीडिंग जो ये इसको वायरस को एक्वायर ये तब करती है जब ये 30 सेकंड्स या उससे कम जब ये फीड करते हैं तो ये फिर जब हेल्दी प्लांट्स में जाके फीड करते हैं तो इस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है एक्विजिशन का, और वो फ्यू मिनट्स से और कई घंटों तक रहता है, और जिसमें ये इनका ट्रांसमिशन जो होता है, और उसके बाद फिर अगर ये उस पीरियड जो है इनका, उस पीरियड के बाद अगर ये किसी
प्लांट में न्यू होस्ट में जाते हैं, तो उस समय फिर ये इनके द्वारा ट्रांसमिशन नहीं होता। ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दोनों तरह के इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें वायरसेस का जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 प्रकार का है, जिसमें एक तो नॉन परसिस्टेंट ट्रांसमिशन है, जिसमें जो पीरियड है इनका वायरसेस का रिटेंशन पीरियड इंसेक्ट्स में वो बहुत कम समय के लिए होता है। फिर सेमी परसिस्टेंट है, जिसमें इनका कुछ समय के लिए ये इंसेक्ट्स के साथ इनका एसोसिएशन रहता है, या एक्वायरिंग पीरियड इनका जो रिटेंशन है इनका टाइम इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर वो कुछ घंटों के लिए से कुछ दिन के लिए रहता है। परसिस्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें जो वायरस पार्टिकल हैं वो कई दिनों तक इंसेक्ट्स के साथ इंसेक्ट्स इनको रिटेन करके रख सकते हैं और इफेक्टिवली ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है लीफ हॉपर्स का, जो मोस्टली ये लीफ हॉपर्स स्टैकिंग पेस्ट में आते हैं और फ्लोएम फीडर्स कहलाते हैं, और इसलिए जो फ्लोएम सीव ट्यूब्स में जो भी वायरसेस या फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स या फेस्टिडियस बैक्टीरियाज ये सब जो रहते हैं, उनका ट्रांसमिशन या उनका डिस्पर्सल डिसेमिनेशन एक जगह से दूसरे जगह लीफ हॉपर्स के द्वारा होता है। तो इसमें कई सारे ऐसे भी वायरसेस हैं जो कि लीफ हॉपर्स के अंदर या वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ जो है ऐसे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ जो दूसरे जो स्टेजेज हैं वहां तक इनका मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसमिशन होता है। जैसे कुछ में ऐसा देखा गया कि एग स्टेज तक इनका जो वायरसेस हैं ये एडल्ट से एग तक इनका ट्रांसमिशन देखा गया है। और मोस्टली जो जितने भी लीफ हॉपर्स हैं इनका जो फीडिंग पीरियड है वो 1 से कई दिनों तक होता है, और ये एक बार वायरस को जब ये एक्वायर कर लेते हैं तो ये रिमेन इन्फेक्टिव रहते हैं उनके रेस्ट ऑफ लाइफ में। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो वायरसेस हैं इनका प्रोपोगेशन होता है या उनका मल्टीप्लिकेशन भी उन लीफ हॉपर्स में होता रहता है। सो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, और 1 से 2 हफ्ते के बीच में ये जो लीफ हॉपर्स हैं ये उसको वायरसेस को नए होस्ट में ट्रांसमिट करते हैं। माइट्स दूसरे हैं जो ये भी एक तरह के सैकिंग पेस्ट हैं जो वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं। इंसेक्ट्स के बाद जो नेक्स्ट है वो कुछ फंगल पैथोजेंस हैं जो कि प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं या उनको डिसेमिनेशन करते हैं। कई सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि रेस्टिंग स्पोर्स में वो सरवाइव करते हैं, और जब वो रेस्टिंग स्पोर्स जैसे जू स्पोर्स जब वो न्यू होस्ट प्लांट पे इन्फेक्शन काज करते हैं, then they also introduce virus particles to that healthy plant। और इस तरह से ये जो फंगल पैथोजेंस हैं इसमें कई सारे नाम हैं जो फंगल पैथोजेंस हैं जो वेक्टर का काम करते हैं। तो ये जितने भी फंजाई हैं वो जू स्पोर्स के साथ इनका जो वायरसेस है इनका एसोसिएशन होता है,
और इसके एग्जाम्पल में हम टोबैको नेक्रोसिस वायरस या कुकुम्बर मोज़ेक वायरस कर सकते हैं, जिसमें जो ये वायरसेस हैं ये या तो आउटसाइड ऑफ द जूस पोर्स या इनसाइड ऑफ द जूस पोर्स ये एसोसिएटेड रहते हैं, और along with the movement of juice pores, the dissemination is also taken place of the virus from one plant to another plant. Even कुछ में ऐसा देखा गया है कि जो स्पोरेंजिया जो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, तो ये वायरसेस भी उसी तरह से वो स्पोरेंजिया के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और दे वाइबल ये कई साल तक ये उसी के ऊपर वाइबल रहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको जो फंजाई हैं जो वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं, और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो पोटैटो वायरस को, ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम वार्ड्स डिजीज ऑफ पोटैटो काज करता है। इस तरह से और भी हैं जिनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन दूसरा जो और वेक्टर हैं वो नेमेटोड्स, दे आल्सो act as a vector and they transmit or disseminate the viruses from one place to another place. So mostly nematodes, they not only disseminate the viruses, but they do also disseminate the different forms of fungal pathogens, bacterial pathogens, and they act as a vector for these pathogens. इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, the best example of टुंडू disease, which is a complex disease, जिसमें कि जो एंगोइना ट्रिटिसाई है, जो नेमेटोड है, it carries the bacterium on its body, और जो ईयर कॉकल डिजीज काज करता है, and the bacterium causes the ear rot. तो along with जो दोनों डिजीजेस जब आती हैं तो टुंडू डिजीज कहलाती है। तो ये जो ईयर रॉट का जो बैक्टीरियम है, ये नेमेटोड जो लार्वी है, जो क्यूसेंट फेज में चला जाता है, उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नेमेटोड्स हैं जो कि फाइटोप्थोरा या फ्यूजियम राजेक्टोनिया को तो एक जगह से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिसेमिनेट करता है। Nematodes not only disseminate these bacterial and fungal pathogens, but they also make avenue for the entry of these pathogens. ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे भी पैथोजेंस हैं जिनके लिए नेमेटोड्स प्राइमरी इन्वेडर का काम करते हैं, और जब नेमेटोड्स जब फीडिंग शुरू करते हैं तो उसी पॉइंट से, उसी इंजुरी पॉइंट से जो बैक्टीरियल पैथोजेंस और फंगल पैथोजेंस है उनकी एंट्री होती है। तो वायरसेस में ये दे प्ले एज ए रोल ऑफ वेक्टर, और इसमें नेपो वायरस, नेटो वायरस, इनका जो ट्रांसमिशन है वो नेमेटोड्स के द्वारा होता है। जिफिनेमा है, लॉन्गिडोरस है, ट्राइकोडोरस है, ये जो वायरसेस हैं, ये जो नेमेटोड्स हैं, जिफिनेमा, लॉन्गिडोरस, ट्राइकोडोरस, ये पॉलीहेड्रल और ट्यूबुलर, नेपो एंड नेटो, पॉलीहेड्रल एंड ट्यूबुलर दोनों तरह के वायरसेस का ये ट्रांसमिशन करते हैं, और ये डिजीजेस हैं जो इनके द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। जैसे टोबरा वायरस है, टोबैको रैटल ग्रुप वायरस है, जो पी अर्ली ब्राउनिंग और या टोबैको रैटल डिजीज को इनके द्वारा ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस के द्वारा होता है। इसी तरह से इसमें ग्रेप वाइन क्रोम वायरस या टोबैको रिंग स्पॉट, टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस, इन जिनको नेपो वायरस बोलते हैं, और ये जिफिनेमा के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है।
Then the most important agency is the human being. The human being or man is the most important factor for responsible uh, for dissemination or dispersal of plant pathogens, या तो शॉर्ट डिस्टेंस में या लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर even the dissemination from one country to another country, इसमें जो ह्यूमन बीइंग है ये डिस्पर्सल में इनका सबसे बड़ा रोल है। और ह्यूमन बीइंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इनकी जो एक्टिविटीज हैं, जितने तरह की ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज हैं वो सभी डिसेमिनेशन में प्लांट पैथोजेंस के प्रोपेगेट्स का, उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी के कड़ी में पहला जो है वो सीड ट्रेडिंग का है। सीड ट्रेडिंग इज बीइंग डन बाय द ह्यूमन बीइंग। और सीड ट्रेडिंग में जो सीड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो जहाँ पे सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लिया जाता है वहाँ से वो दूसरे जगहों में, पर्टिकुलर कंट्री के दूसरे जगहों में या पर्टिकुलर स्टेट में के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, इस तरह से जो सीड है उसका ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग द्वारा या पर्सन्स द्वारा किया जाता है। इसमें जो इंटरनेशनली जो डिसेमिनेशन है, जिसमें जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हम कंटामिनेटेड सीड का करते हैं विदाउट taking proper quarantine or precautions, then it also lead to the movement of pathogens from one country to another country, a kind of international dissemination. तो इस तरह से इवन एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में सीड्स के माध्यम से, सीड ट्रेडिंग के माध्यम से जो इनका प्लांट पैथोजेंस का डिसेमिनेशन है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल इसमें दिए जा सकते हैं, जिसमें सीड ट्रेडिंग एक इम्पॉर्टेंट, या चाहे वो विद इन द कंट्री सीड ट्रेडिंग हो, विद इन द स्टेट सीड ट्रेडिंग हो, या बिटवीन द कंट्रीज हो इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंटामिनेटेड सीड। तो इस तरह से जो इवन ह्यूमन बीइंग आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल for disseminating those plant pathogens which are present in the propagating plant parts, जैसे ट्यूबर्स में, propagating stalks में, fruits में, इनमें जो plant pathogens होते हैं उनका भी dissemination और human being के द्वारा होता है। और ये जो then lead to the development of new disease in new places। और इस तरह का एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देखा गया ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का, और जो सीड है इट वाज परचेज्ड फ्रॉम अदर स्टेट एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन छत्तीसगढ़ एंड देयर वाज क्लस्टर्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस में ये जो सीड ट्रेडिंग है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिला। इस तरह के कई सारे डिजीजेस हैं जो इंटरनेशनली एक जगह से दूसरे जगह जिनका ट्रांसमिशन और डिसेमिनेशन हुआ, जिसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। they brought the infected tubers from Ireland or from UK, and the disease was introduced in India। तो इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। सिट्रस कैंकर का एग्जाम्पल है कि जो एशिया से या सिट्रस कैंकर यूएसए गया, या फिर फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है यूएसए से न्यूजीलैंड गया, या पाउडर मिल्ड्यू है वो यूएसए से यूरोप गया। इसी तरह से कई सारे हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का एग्जाम्पल है साउथ अमेरिका से यूएसए में गया, इवन इंडिया यूके से इंडिया में आया। या फिर बंची टाप ऑफ बनाना का एग्जाम्पल और पनामा डिजीज ऑफ बनाना, दोनों डिजीजेस इंडिया में
एक तो पनामा आइसलैंड से आई और दूसरे श्रीलंका से आई। सो ये ऑल दीज डिजीजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द ट्रेडिंग। ये जो ट्रेडिंग हुई और जो ये इन्फेक्टेड ट्यूबर्स की या प्लांटिंग मटेरियल की, उसके माध्यम से इनका वहीवन सीड बॉर्न जो पैथोजेंस हैं, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि इसमें ये देखा गया कि लूज स्पॉट ऑफ व्हीट का जो डिसेमिनेशन है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये इसके सीड ट्रेडिंग के माध्यम से ये अपने आप होता। और भी उदाहरण है, अर्गट है फॉर मिलेट का, या स्मार्ट ऑफ सॉर्गम है, कर्नाल बंट ऑफ व्हीट का भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। इसी तरह से जो प्रोपोगेटिंग प्लांट पार्ट्स हैं वेजिटेटिवली, उनके माध्यम से भी जो उनकी ट्रेडिंग होती है तो उनके माध्यम से भी जो पैथोजेंस हैं वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में, एक कंट्री में, या समटाइम्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इनका डिसेमिनेशन होता है। और एग्जांपल्स हम पहले ही देख चुके। फिर दूसरा जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, जो ह्यूमन बीइंग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कल्टीवेशन करना हो, चाहे वो प्लांटिंग करना हो, चाहे इरिगेशन करना हो, चाहे वीडिंग प्रूनिंग हो, या प्रोपोगेशन करना हो, या ग्राफ्टिंग बडिंग करना हो, तो इस सब में जो दे एक्ट एज एन एजेंसी के रूप में ये एक जगह से दूसरी जगह इन सभी माध्यमों के द्वारा इन जो जितने भी प्लांट पैथोजेंस है उनका डिसेमिनेशन होता है। और फंगल स्पोर्स हैं, जैसे स्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्क्लेरोसिया, ये वर्कर्स के कपड़ों के साथ, वर्कर्स के साथ ये एक जगह से दूसरे जगह, शूज में, हैंड्स में, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ये चले जाते हैं। जैसे टोबैको का उदाहरण है, टोबैको कल्टीवेशन में ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका ट्रांसमिशन देखा गया। इसी तरह से कोकोनट में एक डिजीज आती है बर्ड राट ऑफ कोकोनट, और उसमें ये देखा गया कि जब वो उसमें वर्कर्स क्लीनिंग के लिए रहते हैं कोकोनट ट्रीज की, तो वो उनके द्वारा ये जो बर्ड राट का पैथोजन है उसका स्प्रेड होता है। फिर कंटामिनेटेड इम्प्लीमेंट्स जब हम यूज करते हैं उसके माध्यम से भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो जो इम्प्लीमेंट्स जब यूज किए जाते हैं उनके माध्यम से भी जो पैथोजेंस हैं उनका एक जगह से दूसरे जगह डिसेमिनेशन होता है। और ये इम्प्लीमेंट्स जो हम यूज करते हैं, चाहे वो वीडिंग में करें, चाहे थिनिंग में करें, चाहे होइंग में करें, और इसमें कई सारे ऐसे देखा गया एग्जाम्पल जो इन इंटरकल्चर ऑपरेशंस और इम्प्लीमेंट्स के द्वारा, बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो है, बैक्टीरियल इसमें एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकुम्बर है, रूट रॉट ऑफ पल्सेस एंड कॉटन से माइक्रोफोमिना, तो इसमें, या फिर हम जब प्रूनिंग और कटिंग करते हैं तो नाइफ्स के साथ भी डिसेमिनेशन होता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो ग्राफ्टिंग और बडिंग मटेरियल्स जो यूज किए जाते हैं, उनके द्वारा भी प्लांट पैथोजेंस का डिसेमिनेशन। सिट्रस, इसमें जो व्हेन there is a careless selection of diseased birds or body stick or disease sian, तो जब ये सब वर्कर्स के द्वारा अगर वो किसी रोगग्रस्त को हमने सियान के रूप में या बडी स्टिक के रूप में सिलेक्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो इनके ह्यूमन बीइंग के माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह उसका जो प्रोपोगेटिंग ग्राफ्टेड पौधा जो बनता है उसका जब वो कैरी करता है दूसरी जगह, तो इसके साथ भी डिसेमिनेशन होता है। फार्म्स एंड वाइल्ड एनिमल्स व्हेन दे फीड ऑन infected field or infected plants and when they feed on healthy plant, तो इस तरह से वो
डिसेमिनेशन का काम करते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे फंगल प्रोपेग्यूल्स हैं जो वाइल ग्रेजिंग, ये फंगल प्रोपेग्यूल्स उनके साथ उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और उनके फीकस के माध्यम से, स्क्रीटा के माध्यम से वो फिर जब दूसरे जगह वो जाते हैं तो उनका डिसेमिनेशन करते हैं। तो ऊस्पोर काऊ डंग में देखा गया, और मैन्योर जो हम यूज करते हैं उसमें कई तरह के इस तरह के स्पोर्स देखे गए मैन्योर्स में, जो कैटल और वाइल्ड एनिमल्स फार्म्स एनिमल्स के द्वारा डिसेमिनेट किए जाते हैं या डिसेमिनेट किए गए। और इसी तरह से स्मट स्पोर्स भी एलिमेंट्री कैनाल में पाया गया है फार्म एनिमल्स के, और जिससे ये